All of you now pay attention. Last lecture we drew one balance sheet, and based on that we started writing the basic entries of the dissolution. Yes. Now just go through those entries. Keep your books open, all of you, because I know you people have not learnt the steps. You people have not learned the entries. Yes or no? You've learned it? जाओ नहीं, चलो देखना शुरू करो. पहला step we saw कि भाई all the assets are transferred to realization account at which value? At which value? Journal entry. Realization to asset. Realization to asset. Step number 2. Any reserve created against the asset, like bad debt reserve, depreciation fund, will also be transferred to realization account. Journal entry. PDR account debit, depreciation fund account debit to realization. Third step, cash account will be transferred to कौन सा है? मैं अगर स्टेप ऊपर नीचे कर दूं तो क्या तकलीफ क्या है गोखड़ियों? मुझे कैश को लेके जाना है, कैश अकाउंट में ना जा सके तो मैं वही करूंगा. कैश बैलेंस विल गो टू which side? Debit side. Then any fictitious asset on the asset side will be transferred to partners. Which side? Journal entry क्या बनेगी? Partners capital account debit to advertisement suspense account to profit and loss debit balance, whatever is the fictitious assets given. Can I say asset baju all complete? Asset baju all complete. Let's go on to the liability side. Which is the first one? Partners capital. Where will it go? Partners capital. Which side? What's the journal entry? हाँ, कोई बना रहा है बेटा, कोई एकदम अकाउंट्स को स्कॉलर बना रहा है. जर्नल एंट्री. There's no journal entry for that, for transferring the balance. Second क्या है? कोई भी reserves है, कोई भी profits है, on the liability side will again go to partners capital. What's the entry? Reserve account debit, P&L account debit to partners capital. Then liabilities, if it is there, then it will be transferred to what's the journal entry? Creditors account debit bill to proud of you बेटा. तुम्हारे आंसर देने से लग रहा है कि कुछ आया है तुमको, शाबाश. फिर अगर पार्टनर का लोन है तो वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? Which side? Again there is no journal entry for the same, right? So with those 8 steps or 8 entries हमने अपनी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट करके वो 4 मेन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए थे. कौन से 4 मेन अकाउंट्स? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट. Now can I say entire balance sheet is now in this 4 accounts? Now onwards, whatever the steps or whatever the entries would be coming, as balance sheet पूरा इन 4 अकाउंट में समा गया है. क्या हो गया है? समा गया है. आगे के स्टेप्स की अब जब हम एंट्री लिखेंगे, जितने भी स्टेप्स हैं उसमें फिर तुम्हें ये 4 अकाउंट ही यूज करके एंट्री लिखनी है. क्यों? क्योंकि बेटा पूरी बैलेंस शीट है कहां पर? इन 4 अकाउंट में. मतलब अब जो नेक्स्ट स्टेप आने वाले हैं वो हम जरा डिस्कस करते हैं, फिर उसकी एंट्री भी डिस्कस करेंगे. ये जो अभी नेक्स्ट स्टेप्स आने वाले हैं, क्या से अपने पूरा बिजनेस क्लोज डाउन कर दिया है. अपने पास अब जो असेट हैं उनका क्या करें हम? क्या से उन्हें हम रियलाइज कर देंगे, उनको हम बेच देंगे. तो वो जब हम रियलाइज करेंगे तब हमको पैसा मिलेगा. या तो ऐसा भी हो सकता है वो असेट में किसी पार्टनर को चिपका दूं. बेटा समझ में आ रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बैलेंस शीट आखी आ 4 अकाउंट में ट्रांसफर કર્યા પછી व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप? के विल बी फर्स्ट सेलिंग ऑफ ऑल आवर असेट्स.
But if assets are not sold off, we will give it to partners. Then from those assets जो भी पैसा आया उनका हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए वो यूज करेंगे। तो हम वो लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे उससे, और अगर कोई लायबिलिटी हमने ना पे ऑफ कर सकी तो वो भी किसको चिपका देंगे, तू पे ऑफ कर। देन उन्हीं पैसों से हमको पार्टनर के लोन का भी पेमेंट करना है। अरे बोलो ना यार। तो ये सारे फर्दर प्रोसीजर हैं बिजनेस को पूरी तरह से क्या करने के, बंद करने के। तो अपना पहला स्टेप क्या था, वो बैलेंस शीट को इन 4 अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब जो आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें हमें जो भी एंट्री लिखनी है, प्लीज बी केयरफुल, यू नीड टू यूज दिस 4 अकाउंट ओनली। We'll be using this 4 accounts only. Go ahead, write the next step. Write the next step. Assets. Assets are sold in the open market. Assets are sold in the open market either at profit, either at profit or at loss for cash, for cash। बड़ा मतलब समझो, हेडिंग जो लिखा है उसका मतलब समझो। बेटा किसी को मतलब समझ में आया नहीं? बेटा किसी को मतलब समझ में आया? इधर समझो, हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है। आई हैव अ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹1 लाख। मैंने उसको ओपन मार्केट में बेच दिया, OLX पे बेच दिया, और मेरे को 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं मेरे को। सो कैन आई से 20,000 का क्या हुआ मेरा प्रॉफिट। तो हमारे पास जो बिजनेस के एसेट है वो जब हम ओपन मार्केट में कैश में बेचने के लिए जा रहे हैं तो या तो मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, या तो देयर इज अ मशीनरी से विद अस ऑफ 80,000 और वो मैंने बेच दी कितने में, 60,000 में। सो यहां पर हमको क्या हुआ, लॉस। यहां पर हमको क्या हुआ, लॉस। तो असेट जब हम बेचने जाएंगे तो आइदर वी मेक अ प्रॉफिट और विल मेक अ लॉस। लेकिन अब उसकी एंट्री कैसे बनेगी, जैसे मैंने कहा ये 4 अकाउंट को ही हमको यूज करना है। किसको, 4 अकाउंट को। अब जरा बुद्धि चलाओ, पैसे आएंगे कि जाएंगे, असेट बेचे हैं तो कहना से कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, जाएंगे क्या, लेकिन सारे असेट कौन से अकाउंट में है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू। तो सर ये जो प्रॉफिट हुआ उसका क्या, उसका टेंशन नहीं लेने का। हम जब रियलाइजेशन का लेजर बनाएंगे ना, तो अगर हमने प्रॉफिट करके बेचा तो वो प्रॉफिट उस लेजर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लॉस करके अगर बेचा है तो उस लेजर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ कितने पैसे आए उससे एंट्री बनानी है। वी नीड टू पास एंट्री विथ व्हाट अमाउंट आई गॉट, दैट्स इट। वो प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट भी मेरा कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट है। रियलाइजेशन भी अपना नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट है, जहां पर ये असेट के सेल करने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ एंट्री कितने अमाउंट से लिखनी है, जितने पैसे आए। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू, लिख लो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इस तरह से ब्रैकेट करके लिखो
एंट्री क्या हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसा तुमने एंट्री लिखा, ब्रैकेट करके लिखो, एंट्री विल बी पास्ड with the amount realized. Entry will be passed with the amount realized. जितने पैसे आए उतने पैसों से ही हम एंट्री को पास करेंगे। प्रॉफिट या लॉस की मगजमारी नहीं करेंगे, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 9 पता चला। स्टेप नंबर 10, assets are taken over by partner. Assets are taken over by partner either at profit or at a loss. Either at profit or at loss. तो हमने क्या करा, असेट को ओपन मार्केट में बेचने के लिए गए कैश में, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार तो हमने क्या करा, उस असेट को किसको चिपका दिया, पार्टनर को चिपका दिया। तो हु इज द रिसीवर, व्हाट गोज आउट, असेट्स, लेकिन सारे असेट हैं कहां, तो एंट्री क्या बनेगी, लिखो पार्टनर्स कैपिटल टू realization account, partners capital account debit to realization account। बेटा तुम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, बेटा तुम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, ऑब्जर्व कर रहे हो क्या से। अभी स्टेप नंबर 9 से जो एंट्रियां बनना शुरू हो रही है ना, एમાં 4 अकाउंट જ વપરાય છે। आगे और जितने भी स्टेप्स आएंगे उसमें भी, तो कहना से लाइफ कितना इजी हो गया, ये 4 अकाउंट पर से ही एंट्री बनानी है। तो हम क्या इतने लेवल के गधे हैं कि ये कर ना सके, एंट्री खुद से बनाओ बेटा, ताकि चैप्टर इजी हो जाए तुम लोगों के लिए, गोखना ना पड़े। 18 स्टेप्स गोखने में तुम्हें 18 दिन लग जाएंगे। तो स्टेप्स खुद से बनाओ, स्टेप्स खुद से बनाओ, एंट्री खुद से बनाओ। चलो शाबाश। असेट बेचने के बाद मैं क्या करूंगा, असेट बेचने के बाद लायबिलिटीज का हम पेमेंट करेंगे। तो लिखो लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, liabilities are paid off in cash, liabilities are paid off in cash with profit, liabilities are paid off in cash with profit। अभी कितना ध्यान, क्रेडिटर्स हैं 60,000 के, क्रेडिटर्स हैं 60,000 के। अगर हमने क्रेडिटर्स को खाली बोला हम दे पाएंगे कितने, 55, तो क्रेडिटर्स ने बोला दे दो भाई, तुम्हारा तो बिजनेस बंद हो रहा है, फिर तो इतने भी नहीं मिलेंगे, दे डालो दे डालो। तो हमने उनको 55 में सेटल कर दिया। सो यहां पर हमने प्रॉफिट करा के लॉस, प्रॉफिट करा के लॉस। अब जरा बुद्धि चलाओ, हम जब लायबिलिटीज का पेमेंट जब हम कर रहे हैं तब हमें लॉस हो सकता है क्या, हमें लॉस हो सकता है, क्यों? क्या से क्रेडिटर को मैं ऐसा बोलूंगा, यार तू तो मेरा बड़ा प्यारा वाला क्रेडिटर है, आज तुझे मैं 65,000 दूंगा। क्या हम क्रेडिटर्स को कभी ओवर पेमेंट करेंगे? डेफिनेटली नो। या तो उनकी जितनी एक्चुअल अमाउंट है उतना दूंगा, या तो डेफिनेटली कम ही दूंगा ना, क्योंकि अपना बिजनेस बंद हो रहा है तो अपने को तो क्रेडिटर को धमकाने का पूरा फर्ज है। उसको हम बोलेंगे तेरे को 50 अगर हम दे रहे हैं तो भी वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको डर क्या है, बिजनेस बंद हो रहा है, 60 पूरे के पूरे डूबे, उससे अच्छा 50 तो आ जावे। यस और नो? तो लायबिलिटी के पेमेंट्स के वक्त हमें प्रॉफिट ही हो सकता है, लॉस नहीं। कोई क्रेडिटर को बोलेंगे नहीं हाँ 75 लेके चला जाना, तेरे को तेरे पैसों पर हम इंटरेस्ट भी देंगे, नहीं ऐसा हम करेंगे नहीं। तो अब जरा बुद्धि चलाओ,
हम क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हैं तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? तो कैश को क्या करूं? कैश को क्या करूं? क्रेडिट। डेबिट किसको करूं? सारी लायबिलिटीज मैंने कहां ट्रांसफर करके रखी थी? तो बनाओ एंट्री, क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा बेटा एक डाउट आ रहा है, सर ये जो प्रॉफिट हुआ 5000 का, उसकी एंट्री कहां लिखूं? उसकी एंट्री कहां लिखूं? लिखने का जरूरत, रियलाइजेशन के लेक्चर में वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे यहां पर एंट्री कितनी अमाउंट से पास करने की? जितना हमने पेमेंट करा, जितना हमने पेमेंट करा उससे अपने को एंट्री पास करने की। तो ब्रैकेट में लिख लो, एंट्री विल बी पास्ड, एंट्री विल बी पास्ड with amount paid, entry will be passed with amount paid. But gettings? Gettings? Next legal step, liabilities. Liabilities are discharged by partner. Liabilities are discharged by a partner. अब जरा बेटा तुम स्कॉलर बैच हो, बुद्धि चलाओ, एंट्री बनाओ। हमने पार्टनर को लायबिलिटी चिपका दी, हमने बेटा लायबिलिटी पार्टनर को चिपका दी। Can I say तो who is the giver of this liability? Who is the giver? Partner। और सारी liabilities हैं कहाँ? So लिखो एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा अगर तुम में ऑब्जर्वेशन स्किल्स हो तो कैन आई से कैश ना देके मैंने वो लायबिलिटी पार्टनर को चिपका दी, तो ऊपर जो एंट्री बनाई ना रियलाइजेशन टू એમાંથી કેશ હટાઈને કોને લખી કાઢવાનું? એટલે એન્ટ્રી બની ગઈ। समझ में आ रहा कैसे बना रहा हूं एंट्री? कैश, रियलाइजेशन टू कैश हमने बनाया ना, जब हमको कैश देना है। अब कैश तो देना नहीं, पार्टनर दे रहा है पैसा, तो कैश को हटा दो, पार्टनर को लिख डालो, एंट्री बन गई, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट लिखो, शाबाश। पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन in cash, payment of partner loan in cash। But raise your hand, I want journal entry from you। Payment of partner loan in cash, Dhyani? Partners loan to cash, realization नहीं आएगा? क्यों? कहना से पार्टनर लोन का हमने अलग से लेक्चर बनाया है, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर। So beta, who is the receiver? Partner loan. What goes out? So partner's loan account debit to cash। And beta same कहानी क्या होगा? लिखो स्टेप नंबर 14, partner's loan is discharged by a partner। Partner's loan is discharged by a partner। शाबाश बेटा, एंट्री बना डालो। पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। Partners loan account debit to partners capital। बेटा यस और नो? कितने स्टेप हो गए? शुरू कहां से की था आज? जरा वापस चेक करो। आर वी यूजिंग दिस 4 अकाउंट्स? नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट एंट्री, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस
realization expenses, dissolution expenses, realization expenses paid in cash. Dissolution expenses, realization expenses paid in cash. सर ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं? Can I say whenever we are closing down the business, तो can I say we need to fulfill some legal formalities? कि भाई एक बार अपना अगर बिजनेस बंद हो गया है तो कोई भी फिर अपने पे कोई दावा नहीं करेगा कि ये ट्रांजैक्शन इस कंपनी ने करे हैं, तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें करने पड़ते हैं। बंद करते वक्त बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंस हम कर रहे हैं, तो वो हमने करा कैसा? बाय कैश। बाय, तो कैन आई से कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। कैन आई से ये एक्सपेंस है मेरे, तो एक्सपेंसेस ऑन, उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करूंगा मैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शाबाश। Then step 16, dissolution expenses, realization expenses paid by a partner. Dissolution expenses, realization expenses paid by partner. शाबाश। मैं नहीं बताऊंगा एंट्री, तुम लिख डालो सीधी। मैं एंट्री बताऊंगा ही नहीं, तुम लिख डालो। क्या से तुमने देखो ऐसी एंट्री लिखी है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो क्या लिखा है? अरे सही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप नंबर 17। अच्छा, before I go to step number 17, do you all remember the chapter of admission? No. Retirement? No. Can I say whenever we were closing the sums of admission and retirement, what was the first step we used to do? We were closing what? Revaluation. And what was the purpose of closing that revaluation account? To find out the profits and loss on revaluation of the assets. उसी तरह से अभी हमको जब सारी आइटमें अभी बंद करनी है, तो मेरे को रियलाइजेशन अकाउंट भी बंद करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि असेट्स बेच के लायबिलिटीज पे ऑफ करके मेरे पास प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। समझ रहे हो? जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करते थे, अब हम क्या बंद कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम सारे असेट्स ये अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको रियलाइज कर देंगे, पैसे आएंगे, उससे लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। सो अल्टीमेटली वी आर रियलाइजिंग द थिंग्स, तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी बंद करके ढूंढना क्या है? प्रॉफिट या तो लॉस। लिखो स्टेप नंबर 17, क्लोजर ऑफ realization account, closure of realization account and finding profit or loss, finding profit or loss on realization, finding profit or loss on realization। तो उसमें बेटा सब हेडिंग मारो, सब हेडिंग 17 में सब हेडिंग मारो A, in case of profit। बेटा सब हेडिंग मारेंगे in case of profit। मतलब देखो रियलाइजेशन अकाउंट बंद करा, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो जरा बुद्धि चलाइए, प्रॉफिट हम ट्रांसफर कहां करेंगे? Which side? Which side? Now क्रेडिट साइड ट्रांसफर करने का मतलब मैंने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करा, डेबिट किसको करूं? रियलाइजेशन।
सो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाता है। सो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और बेटा सेकंड सब हेडिंग इन केस इट्स अ लॉस। इन केस इट्स अ लॉस तो बेटा एंट्री बना लोगे लॉस की? कैसे बने यहां से प्रॉफिट वाली एंट्री को उल्टा कर दो ना यार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तुम्हें जो अभी तक नहीं हो रहा है, रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। द लास्ट स्टेप, the last step, full and final settlement, full and final settlement amongst the partner, full and final settlement amongst the partner। बेटा ये हेडिंग से इसका मतलब जरा समझाओ। full and final settlement amongst the partner, what do you mean by this heading? हाँ देव, क्या से पार्टनर्स को पे ऑफ कर देंगे? नहीं 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 नहीं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। हाँ शाइमा, कर दी है, उसकी एंट्री लिख डाली, कर डाली वो एंट्री लिखी तो सही है भी शाइमा, प्रॉफिट के लॉस की। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बेटा बिजनेस अपना क्या हो रहा है? तुम्हारा जो दिमाग है अभी बंद हो रहा है। दिमाग जो है वो क्या है तुम्हारा अभी, उसी तरह से बिजनेस भी हम बंद कर रहे हैं। अब बिजनेस को अगर हमने बंद करा, हमने सबसे पहले असेट बेच डाले, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, लोन चुका दिया, उसके बाद अगर कुछ कैश में सरप्लस बच गया, थोड़ा कैश में अगर सरप्लस बच गया, तो जो पार्टनर जिसने ये बिजनेस शुरू किया था उनको कुछ पैसे घर ले जाने का हक नहीं है? अरे बोलो ना यार, बिजनेस जब चालू कर रहे हैं तब पैसे लेके आ रहे हैं, तो जब बिजनेस बंद हुआ तो वो भी थोड़े पैसे अगर कुछ बचे तो वो भी घर लेके जाएंगे। तो हर एक इंडिविजुअल पार्टनर कितना पैसा लेके जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पता चलेगा। लेकिन जितना भी कैश बचा है वो पार्टनर लेके चले जाएंगे। इंडिविजुअल पार्टनर लेके चले गए, आपने छुट्टा। Are you getting it? Who is the receiver? What goes out? बन गई एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा यहां ध्यान, यहां ध्यान। इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम इट मे हैपन कि they would ask you one full-fledged lengthy sum. Are you getting it? But as per the board, the weightage of this chapter is कि they will be asking only short sums. So the 18 steps what we have written, from those 18 steps you will able to easily do all the short sums. Are you getting it? बट इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम मान लो बड़ा सम आ गया तो टेंशन मत लेना। बड़े सम में ये 18 के 18 सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना। इफ यू फॉलो दिस ऑल 18 स्टेप्स लाइन बाय लाइन, तुम वो बड़ा सम भी आराम से कर लोगे। गेटिंग इट? गेटिंग इट? आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, लर्न ऑल द स्टेप्स, वी क्लोज द बुक, ओरल लिया जाएगा। चलो शाबाश, 15 मिनट्स। स्मिथ वो बंद कर दे।